So class 7th, as we have finished with the one letter writing and one diary entry, so we start with this lesson, modals. Open page number 69. So we start with the lesson, modals, grammar lesson. It will not come in this PT2. We are just going forward in the syllabus as you people are quite lagging behind in your syllabus. So that is why I want to start with the next lesson. Clear to all? So don't worry, this will not come in your PT2. So we are just doing it for the covering the syllabus. Yes, open at page number 69. Verb modals. So what are modals? Have you heard about them? Modals are one type of helping verbs. So they are like the helping verbs. ये helping verbs होते हैं बच्चे, and they are also known as the modal auxiliaries. इनको modal auxiliaries, auxiliary verbs हम बोलते हैं ना, तो auxiliary verbs एक तरह से helping verbs ही होते हैं. Clear? तो ये हमारे एक तरह से these are type of helping verbs only and they are also known as the modal auxiliaries. इनको मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहते हैं एंड दे हेल्प द स्पीकर कन्वे हिज और हर मेंटल स्टेटस. तो इससे हमें एक्चुअली we come to know about the mental status, means we come to know about the ability, about whether we are doing some obligation or there is a necessity or there is a permission in our sentence. The usage of these words tell about whether we are able to do that thing, whether it is a necessity, whether it is a permission or an obligation, or things like that. So means it tells about the mental status of the speaker. Now how? They imply the sense intended by the speaker. Means when we use these type of modals na, so it tells about that what the speaker intends to do. Means वो क्या करना चाहता है या क्या करवाना चाहता है. What the speaker wants to do means उसकी जो है सेंस क्या है उसके सेंटेंस की. इससे इन वर्ड से we come to know about from these words. Like negative modals, when we will add not to all these na, so they will form into a negative, like should, shouldn't, must, mustn't, need not, ought not आप ऐसे भी लिख सकते हैं, oughtn't, ये contractions हैं सारे. Modal verbs join with the main verbs in their basic form. So जो modal verbs होते हैं ये main verbs को basic form में join कर लेते हैं to show the different meanings. तो जब हम when we use these modal verbs with the main verbs ना, they change the meaning, they imply the sense intended by the speaker, they tell what the speaker intends to say. आप अभी समझ जाएंगे. I will explain you. Like intend to say, like it shows the ability of the speaker, it shows whether it is our duties हैं या privileges हैं. Certainty है means you are sure about something. Prediction है, you are predicting something. Probability है, chances of probability है. Whether it is a necessity or you are asking for some permission, it's a probability or a possibility. It's your intentionally doing, your willingnessly doing, or it's a prohibition. So all these modes can be conveyed through these modal verbs. Modal verbs always have the same form. इनकी same form रहती है, they don't change. Clear? They cannot be added with suffixes. इनमें कोई suffixes नहीं लगते बच्चे, s या ed या ing. No suffixes are added to it. The four modal verbs कौन कौन से हमारे? Can, may, will, shall. इनके हमारे 4 के पास्ट टेंस होते हैं. कैन का बन जाता है कुड, मे माइट, विल वुड, शैल का शुड. ये इनके पास्ट टेंसेस हैं. स्टिल दीज पास्ट टेंसेस फॉर्म्स नॉट ओनली पॉइंट एट द सेम पास्ट intention of the speaker, but they independently function as modals expressing different sense. So whether these are the past tense of these verbs, but still they don't point at some the past instance. ये किसी past
इंटेंशन के बारे में नहीं बताते हैं स्पीकर की। इनका फंक्शन अलग होता है, इनकी सेंस अलग होती है। इसका मतलब ये नहीं है अगर ये इनके पास्ट टेंस है तो ये किसी पास्ट एक्शन के बारे में बता रहे हैं। नो, दे जस्ट फंक्शन एज एक्सप्रेसिंग डिफरेंट सेंस एज गिवन बिलो। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड नॉट कम टू योर होम येस्टरडे। आई कुड नॉट, पास्ट टेंस ऑफ कैन है ना, कुड. So could you please help me solve this problem? So this is past tense of can. Means I could not come to your home yesterday. तो इसमें ये पास्ट के बारे में तो हमें बता ही रहा है, कुड यूज़ किया ना, तो पास्ट दे नॉट ओनली पॉइंट एट द पास्ट टेंस बट दे इंडिपेंडेंटली फंक्शन. मीन्स वो हमें ये भी बता देते हैं कि कुछ चीज़ पास्ट टेंस में हुई है, समथिंग हैज़ हैपन्ड इन द पास्ट, बट एट द सेम टाइम दे हैव देयर इंडिपेंडेंट फंक्शन ऑल्सो. क्लियर टू ऑल? So here it is telling that I could not come to your home yesterday. Yesterday, through yesterday you come to know that we are talking about something in the past. So we have used could. Not means negative form में हमने modal use किया है. So that means it is very clear that you couldn't go to the his home yesterday means आप कल उनके घर नहीं जा सके. Here ability, can और could जो होते हैं ना ability show करते हैं. नाउ हियर यू आर कुड यू, अब आपने इसे क्वेश्चन फॉर्म में यूज़ किया है. सो व्हेन यू यूज़ इन अ क्वेश्चन फॉर्म तो ये जो मॉडल होता है ना ये पहले लग जाता है. इज इट क्लियर? कुड यू प्लीज़ हेल्प मी सॉल्व दिस प्रॉब्लम. नाउ हियर इट इज़ इन द इंटेरोगेटिव फॉर्म, इट इज़ इन द फॉर्मल फॉर्म, बट इट्स अ वेरी पोलाइट रिस्पेक्ट. आप किसी से हेल्प मांग रहे हैं, है ना, और बहुत पोलाइटली हेल्प मांग रहे हैं. आप सपोर्ट बहुत प्यार से बोल रहे हैं, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी सॉल्व दिस प्रॉब्लम. मीन्स फॉर्मली भी पूछ रहे हैं और पोलाइटली भी पूछ रहे हैं. सो इट्स अ वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट. नाउ पॉसिबिलिटी भी शो करता है ये. आई थिंक इट कुड बी द मिल्क मैन एट द गेट. सपोज गेट पे किसी ने नॉक किया एंड उस टाइम पे अक्सर ऐसा होता है कि मिल्क मैन आता है ना. सपोज़ 9 बजे का टाइम है उसका, तो 9 बजे गेट आपका नॉक हुआ तो आपने एक पॉसिबिलिटी लगाई. तो जहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है ना वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कैन या कुड. इट कुड बी, पॉसिबिलिटी है तो इट कुड बी द मिल्कमैन एट द गेट. और कोई फ़ोन आ गया एंड यू वर एक्सपेक्टिंग योर फ्रेंड्स फ़ोन, सो यू कुड यूज़ दैट. आई थिंक इट कुड बी माई फ्रेंड सरिता. तो मीन्स आपको पहले से लग रहा था, जहाँ पे एक्सपेक्टेशन हो किसी चीज़ की, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस चीज़ को या पॉसिबिलिटी है उस चीज़ की, तो वहाँ पे हम कुड लगा देते हैं. तो यहाँ पे 3 डिफरेंट फंक्शंस प्ले कर रहा है. कैन, कुड पास्ट टेंस दिखा रहा है ना. देन सेकंड फॉर्म में वो एक फॉर्मल और पोलाइट रिक्वेस्ट बता रहा है. थर्ड फॉर्म में वो एक पॉसिबिलिटी बता रहा है. तो 3 फंक्शंस हो गए ना उसके अलग. पास्ट टेंस भी बताया, फॉर्मल रिक्वेस्ट भी बताई, पोलाइट रिस्पेक्ट, है ना, एंड थर्ड में पॉसिबिलिटी भी दिखाई. तो ये 3 फंक्शंस हो गए, कैन और कुड के हो गए. अब हम आ जाते हैं वुड पे. शी सेड शी वुड टीच मी दिस चैप्टर. सिंपल. पहले तो एज अ पास्ट टेंस ऑफ विल हमने वुड को यूज़ किया. शी सेड शी वुड मीन्स वो मुझे टीच करेगी ये चैप्टर. ठीक है, वो करेगी, क्योंकि विल और शैल क्या होते हैं, फ्यूचर टेंस होते हैं ना. यूज़ दीज टर्म्स इन द फ्यूचर टेंस. सो विल का जो हमारा पास्ट टेंस होगा वो वुड हुआ ना. तो शी सेड शी वुड टीच मी दिस चैप्टर मीन्स वो मुझे ये चैप्टर पढ़ा देगी. अब फॉर्मल और पोलाइट रिस्पेक्ट के हमने फॉर्म में अगर कुछ पूछना हो, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, आपने क्वेश्चन फॉर्म में डाला, फॉर्मल डाला, तो इसमें हमारा जो मोडाल है वो आगे आ जाता है. पोलाइट रिक्वेस्ट की कि क्या आप विंडो खोल देंगे, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, क्या आप विंडो खोल देंगे. तो ये आपकी एक फॉर्मल और पोलाइट रिक्वेस्ट भी हो गई. इम्प्लाइज द लैक ऑफ सर्टिनिटी. यहाँ पे आप सर्टन नहीं हैं किसी चीज़ के लिए, यू आर नॉट श्योर. इम्प्लाइज द लैक ऑफ सर्टिनिटी मीन्स यू आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग. आई वुड जॉइन यू एट द स्टूडियो इन द इवनिंग. I would join you, right? So you are not certain about that you will join him in the evening. So that is why you have used would. So when you are not sure about something, then you will use would.
So here again 3 functions of would. Is it clear to all? Now can, could, cannot का can't लग गया और could का couldn't, नेगेटिव फॉर्म. मोडाल आ गया हमारा कैन और कांट, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ही कैन स्पीक स्पेनिश, ही कैन फिनिश द वर्क टुडे. एबिलिटी दिखा रहा है ना आपकी, ही कैन स्पीक स्पेनिश. इसमें क्या इसका यूसेज है? ही कैन स्पीच मीन्स ही कैन स्पीक स्पेनिश मीन्स उसमें एबिलिटी है दैट ही कैन स्पीक स्पेनिश. ये एबिलिटी शो कर रहा है. इन द नेक्स्ट सेंटेंस, दे कैन फिनिश द वर्क टुडे. दे कैन, हियर कैन क्या शो कर रहा है? पॉसिबिलिटी कि उनका काम आज ख़त्म हो जाएगा. दे कैन फिनिश. It shows the possibility that work will be finished today. So it shows the possibility or the probability. Now, if you have to seek some permission, आपने कोई permission लेनी है, तो आप कैसे? मोडाल जो हमारा क्वेश्चन फॉर्म जब हम डालते हैं तो हमारा वर्ब पहले आ जाता है ना, तो ये मोडाल वर्ब है. कैन आई सिट हियर फॉर सम टाइम. सो हियर यू आर सीकिंग परमिशन. आप कोई परमिशन ले रहे हैं तो आप कैन यूज़ कर रहे हैं. यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ एबिलिटी शो कर रहा है. इन दिस सेंटेंस इट इज़ शोइंग द पॉसिबिलिटी एंड हियर इट इज़ शोइंग द परमिशन. आप किसी से परमिशन ले रहे हैं, तो इट इज़ कैन आई सिट फॉर सम टाइम. कांट. चलिए अब हम कैन का एक और देखते हैं. कैन यू लेंड मी सम मनी. अब कैन यू लेंड मी सम मनी, आप कुछ हेल्प मांग रहे हैं उससे, है ना, तो पैसे की हेल्प मांग रहे हैं. तो हियर यू आर व्हाट यू आर डूइंग, यू आर रिक्वेस्टिंग हिम कैन यू लेंड मी सम मनी. तो आप इसको रिक्वेस्ट फॉर्म में बोल रहे हैं. तो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है? रिक्वेस्ट दिखा रहा है. देन कैन आई हेल्प यू लिफ्ट दिस बॉक्स. यहाँ पे आप उसको ऑफर कर रहे हैं, हेल्प की कर रहे हैं ना, आप खुद बोल रहे हैं कैन आई हेल्प यू लिफ्ट दिस बॉक्स. सो जस्ट सी how many functions the can is playing. It shows the ability, it shows the possibility also, it helps in seeking permission also, then it is a request also, and it is a offer also. So it can be can be used in so many forms. Now can't, prohibition, जहाँ पे किसी चीज़ की रोक टोक हो वहाँ पे prohibition हो तो we use can't. I can't attend the function this evening. मैं ये फंक्शन नहीं अटेंड कर सकता. आप कोई चीज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे आप कांट यूज़ करेंगे. एम आई क्लियर हियर? अगेन सीकिंग परमिशन मोर फॉर्मल. अगर आपने फॉर्मली पूछना है कुछ, कुड आई बोरो योर मैगजीन. अगर आपने इसे बहुत ज़्यादा फॉर्मल बनाना है ना, यहाँ पे भी आपने परमिशन ली, पर यहाँ पे आपने सिंपल वे में पूछा कैन आई सिट हियर फॉर सम टाइम. बट यू वॉन्ट, इफ़ यू आर वॉन्ट टू आस्क इट, मेक इट वेरी फॉर्मली, सो यू विल यूज़ कुड हियर. जब आप कुछ बहुत फॉर्मली परमिशन लेना चाहते हैं, मैम हैं आपकी, टीचर से लेना है या कोई हायर अथॉरिटीज़ हैं, तो वहाँ पे आप कुड यूज़ करेंगे. जब आप आपस में बात कर रहे हैं, तो आप सिंपल फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं, तो आप कैन यूज़ कर सकते हैं. बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सीकिंग परमिशन फॉर्मली, सो यू विल यूज़ कुड. वहाँ कुड ज़्यादा बेटर लगेगा. रिक्वेस्ट, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी लिफ्ट द कार्टन. क्या आप मेरी कार्टन उठाने में हेल्प करेंगे. रिक्वेस्ट होगी और फॉर्मल रिक्वेस्ट होगी, है ना, पोलाइट लग रहा है ना, पोलाइट कुड यूज़ करेंगे. नाउ सजेशन. अब आपने किसी को सजेशन देना हो, यू कुड गो टू द डॉक्टर टुडे. तुम डॉक्टर के आज जा सकते हो, तुम्हें जाना चाहिए. सजेशन दे रहे हैं आप, तो आप वहाँ पे कुड यूज़ करेंगे. पॉसिबिलिटी हो अगर कुछ होने की, या प्रॉबिलिटी, आई थिंक शी कुड बी HM. आपने किसी को देखा और उसको देख के आपने अज्यूम किया कि आई थिंक शी कुड बी HM, कि मुझे लगता है कि ये HM है. ठीक है, तो जब आपको लग रहा है पॉसिबिलिटी है किसी चीज़ की, वहाँ पे भी आप कुड यूज़ कर सकते हैं. नाउ पास्ट एबिलिटी, कोई पुरानी आपकी एबिलिटी है जो अब नहीं है. आई कुड रन फॉर 1 hour. आप रन करते थे 1 घंटे के लिए. व्हेन आई वॉज थिन, जब मैं पतला था. आई कुडंट डू इट. तो इसमें हमने कुड भी यूज़ कर लिया, कुडंट भी. कुड हमने तब यूज़ किया, कुड और कुडंट वी यूज़ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सम पास्ट एबिलिटी. मीन्स आप पास्ट में कुछ ऐसा करते थे जो आप नहीं कर सकते अब. आई कुड रन फॉर 1 hour व्हेन आई वॉज थिन, बट आई कुडंट डू इट.
अब आप नहीं कर सकते, सो देन वी यूज़ कुड एंड कुडंट. इज इट क्लियर टू ऑल? So we end our lecture today here and we will start from tomorrow there. हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कल. ठीक है, आप लोग रिवाइज कीजिए, पूरा रीड कीजिए इसको, एंड यू कैन स्टार्ट राइटिंग इन योर कॉपीज़ ऑल्सो. मोडाल वर्ब्स अपनी कॉपीज़ में भी लिख लीजिए, डेफिनेशन लिखिए, एग्जाम्पल्स लिखिए, एंड ये लिखिए, ये पूरा पार्ट ये भी लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए. राइट डाउन द डेफिनेशन. एंड इसके बाद यहाँ तक लिखने के बाद आप ये भी लिखेंगे यहाँ तक. सो यू कैन राइट अप टू हियर. इसके बाद आप यहाँ आ जाइए. आपने ये चार्ट बनाना है कॉपी में. मेक दिस चार्ट इन योर नोटबुक. ये नोटबुक में बनाइए पूरा चार्ट. ठीक है, इससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा कि कहाँ आपने एज एबिलिटी यूज़ किया, कहाँ पॉसिबिलिटी. सो यू डू दिस वर्क टुडे, रिवाइज इट प्रॉपरली, रीड इट अगेन, and we will start from there tomorrow. Is it clear, class 7th?